Bihar Chief Minister with us. Just one invitation was enough for him to accept and come. I just thought I would just leave one little thought about what lies ahead. A few years ago in Patna, one of my favorite cities for any political journalist, there is no other city like Patna, frankly. Lucknow is a close competitor, but there is no other city which is as obsessed with politics as Patna is. So I happened to meet an old friend and I asked him, how has Patna changed? So he said, एक बहुत बड़ी चीज हुई है. मेरी बेटी जो है वो अब शाम के पिक्चर के लिए जरूर जाती है. What seems a very normal thing in most parts of India, in that period in Patna was truly liberating. A young girl could now go to cinema halls, and cinema halls were full in Patna a few years ago. That is seen as a great achievement of Nitish Kumar, one side of the story. There is a possible other side, which was revealed a couple of weeks ago when the midday meal scheme unfortunate incident took place. Several young children died. और कुछ लोग कहते हैं that is the darker side of Bihar, a side which also needs to be seen. Are there two Bihars? Are there two, in a sense, images of the model of government of Nitish Kumar? Is there a Bihar model of governance? Is it a political model in a sense that generates a sense of subnationalism, as some are suggesting? Is there an economic model, and is that economic model to be contrasted, let's say, with the Gujarat model of governance? What really is this Bihar model of governance? We hear a lot of the Gujarat model of governance. For whatever reason. Perhaps it's better marketed, it's better sold. We don't hear enough of the Bihar model of governance. So this is a unique opportunity to get the two-time or three-time Chief Minister actually of Bihar. Sometimes we forget that Nitish Babu had a very small term also at the start. So he's actually a three-time Chief Minister. It is a privilege to have him here. We were told that he was going to give a presentation, and that worried us because then we thought that he's getting into some kind of a competition with other leaders who like to give presentations at gatherings like this. But it turns out that he is not giving any presentation. He just wants to express himself on the Bihar model of governance. May I invite Mr. Nitish Kumar and Raghav Bell, founder, editor of Network 18, who's really been the driver of the Think India dialogue, to come together and let's try and explore what really is the Bihar model of governance. The Chief Minister of Bihar. मैं सबसे पहले टीवी 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया और अभी राजदीप सरदेसाई जी बता रहे थे कि मुझे बिहार के गवर्नेंस पर कुछ कहना है, जिसको उन्होंने बिहार मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहा. हम लोग ये हैसियत नहीं रखते हैं कि हम कोई मॉडल की बात करें. बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने की एक विनम्र कोशिश हम लोगों ने की है और हम किसी दूसरे राज्य से अपनी तुलना नहीं कर सकते. हां, अपने जैसे पिछड़े और गरीब राज्यों को सामने रखकर और उनके लिए क्या उपयोगी है, हमारे लिए क्या उपयोगी है, इसमें कुछ समानता देखते हैं. अब भारत तो बटा हुआ है. कुछ इलाके
60 साल में बहुत आगे बढ़े हैं और कुछ इलाके जो किसी जमाने में बहुत आगे थे, बहुत पीछे चले गए। और इसके लिए उन राज्यों का या उन इलाकों का कसूर नहीं है। वो जो केंद्र से नीतियां बनती हैं, वो जिम्मेवार होती हैं। तो बिहार बहुत पीछे रहा। ये कोई 15 साल का पिछड़ापन नहीं था। ये आजादी के बाद का, आजादी के पहले का भी। तो उस राज्य को पिछड़ेपन के संकट से निकालना एक बड़ी चुनौती थी और हमने लगातार बिहार में लोगों के बीच में जब काम किया तो महसूस किया कि बिहार के लिए क्या किया जाना चाहिए। हमने अपनी खासियत को भी देखा, अपनी कमजोरी को भी देखा। हमारी आबादी ज्यादा है। आबादी का घनत्व आज सर्वाधिक है बिहार में, देश के अंदर। पॉवर्टी सबसे ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम को देखें तो उस मामले में हम सबसे नीचे हैं और इतना नीचे हैं कि हमसे जो ऊपर है उससे भी बड़ा फासला उसके बीच भी। हर क्षेत्र में, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, हर मामले में हम पीछे थे। ये वही बिहार है जो आज जो हम भारत जिसको देखते हैं उससे भी बड़े भूभाग का केंद्र था, सत्ता का केंद्र, ज्ञान का केंद्र, सब कुछ था, लेकिन वो पिछड़ता चला गया। तो जब हम लोगों के बीच जाते थे, लोगों से हम बातचीत करते थे, तो उस समय से ही हमको लगा कि बिहार के ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि लोगों का विकास हो। और इसलिए हमने कहा कि ग्रोथ विथ जस्टिस, न्याय के साथ विकास। तो अगर बिहार के काम को किसी मॉडल के रूप में आप प्रस्तुत करना चाहें तो आप कह सकते हैं एक वाक्य में कि हमारा रास्ता ग्रोथ विथ जस्टिस है, न्याय के साथ विकास है। और यह समावेशी है, इंक्लूसिव है। इसमें हम लोगों ने सबों को भागीदार बनाया है। जो बिहार की संभावनाएं हैं उसको हम लोगों ने पहचानने की कोशिश की। तो इसी सिलसिले में मैंने जिसका जिक्र किया कि हमारी क्या खासियत हो सकती है, हमारा क्या स्ट्रेंथ हो सकता है, तो हमारे लोग बहुत ही मेहनती लोग हैं। देश के दूसरे हिस्सों में जाकर वहां दौलत पैदा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां के विकास में योगदान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बहुत ही इंटेलिजेंट यानी मेधावी युवा वर्ग। बिहार में भले ही इंस्टीट्यूशंस की कमी हो, लेकिन अगर आप देश में देखें तो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जेएनयू से लेकर आईआईटीज में जाइए, किसी भी संस्थान में आप जाइए, तो आप पाएंगे कि बिहार के लोग बड़ी संख्या में वहां पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा है कि अगर एडमिशन के लिए कोई एग्जामिनेशन हो, टेस्ट हो, तो उसमें भी बिहार के यूथ सबसे अधिक संख्या में कंपीट करते हैं। या फिर किसी प्रकार की नौकरी हो, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली परीक्षाएं हों, आईएएस हो, आईपीएस हो, या फिर रेलवे के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। आप किसी परीक्षा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट देख लीजिए, आपको सबसे अधिक संख्या में या बहुत अधिक संख्या में बिहार के लोग कंपीट करते हैं। तो यहां इतनी मेधा है, मेहनती लोग हैं, मेधावी युवा पीढ़ी है। तो ये हमारी खासियत है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर हमारा फर्टाइल लैंड
उपजाऊ जमीन है। बाढ़ के बावजूद लगातार फ्लड्स आते हैं या ड्राउट एक लगा रहता है उसका सिलसिला। इस साल हम ड्राउट की स्थिति से जूझ रहे हैं। कभी फ्लड से भारी तबाही होती है। इन सब चीजों के बावजूद एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी संभावना है। और तीसरी चीज है हमारा हेरिटेज, जो बिहार में है वो कहीं नहीं है। आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले के इतिहास के बारे में अगर कोई सोचता है, कोई हिंदुस्तानी, तो उसको पाटलिपुत्र, राजगीर, ज्ञान के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये सब तो हमारे पास हेरिटेज है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही हम लोगों ने विकास की अपनी रणनीति बनाई। और जो पिछले कुछ समय से एक स्थिति आ गई थी कि स्टेट एक तरह से विलुप्त हो रहा था, स्टेट की अथॉरिटी नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया? जब काम करने का लोगों ने मौका दिया, हम लोगों के ऊपर विश्वास जताया, तो सबसे पहले हमने स्टेट की अथॉरिटी रिस्टोर की। और हम ज्यादा लोगों के बीच में नहीं बोलते थे। हमने कहा था लोगों को कि कानून का राज कायम करेंगे और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे, यानी सबको साथ लेकर चलेंगे। तो हम लोगों ने वही किया है। अगर इसको मॉडल के तौर पर देखना चाहते हैं तो यही हमारा मॉडल है। और बिहार में जिसका जिक्र आपने भी किया, लॉलेसनेस था, अराजक की स्थिति थी, लोग डरे सहमे रहते थे। शाम तक अगर घर से गया हुआ कोई परिवार का सदस्य शाम तक नहीं लौटा घर में, तो पूरे घर में चिंता हो जाती थी। आज किसी के ध्यान में यह बात नहीं रहती है कि घर का कौन आदमी बाहर गया है और वो कब लौट रहा है, कब घर से निकलना है। अगर जरूरत पड़ी तो देर शाम में और रात में भी लोग बाहर जाते हैं। और किसी प्रकार का डर नहीं है, लोगों के मन से डर निकल गया। रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया गया और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ। यूनिफॉर्मली कानून ने अपना काम किया है। इतने लोगों को कोर्ट्स ने सजा दी है, प्रोसिक्यूशन ने अपना काम किया, पुलिस ने अपना काम किया। कोई रातों रात पुलिस नहीं बदल गई, लेकिन उनके जो अधिकार थे, उनका जो काम था, उस हिसाब से उनको काम करने दिया गया और उनको प्रेरित किया गया कि करो। आर्म्स एक्ट से कन्विक्शन शुरू हुआ और अब तक 83,000 से ज्यादा कन्विक्शन हो चुके हैं। तो पता चला है कानून का राज कायम हुआ। पहले लोग गुंडों से डरते थे, अपराधियों से डरते थे, आज अपराधी कानून से डरते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात हुई है बिहार में, और स्टेट की अथॉरिटी रिवाइव कर सकी। तो यहां से शुरू करके हम लोगों ने दोनों क्षेत्र में काम किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम हर चीज में पीछे थे। और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम किया। आप ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स को देखिएगा तो दंग रहिएगा। हम लोगों की जब सरकार बनी थी तो 12.8% बच्चे स्कूलों के बाहर रह रहे थे और 5-6 साल में वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या घटकर 3% हुई। अब हम क्वालिटी पर जोर दे रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। आपने इसी बीच में मिड डे मील की चर्चा की। वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है और इससे हम सब दुखी हैं और चिंतित हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन घटी है। पुलिस को वक्त मिलना चाहिए, उसके तह तक पहुंचेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें वो एक अलग विषय है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं होती रहती हैं, उसको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और उसके तह तक जाना चाहिए, लॉजिकल एंड तक उसको पहुंचाना चाहिए। एक तो उसके लिए सुधार का काम करना चाहिए कि कहीं कोई कमी है तो उसको सुधारा जाए,
और कहीं कोई बदमाशी है तो वैसे लोगों को पकड़कर कानून के कटघरे पर खड़ा किया जाए। और इस तरह से हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन 12.8% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे, वो संख्या घटकर 3% हुई। पब्लिक हेल्थ सिस्टम की क्या स्थिति थी? एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमने सर्वे कराया 2006 के फरवरी में, तो पता चला कि ऑन एन एवरेज एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक महीने में, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, एक महीने में 39 पेशेंट्स जा रहे हैं। यानी किसी दिन एक, किसी दिन 2 पेशेंट जा रहे थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यानी वो लगभग 3 लाख की आबादी पर वो होता है। तो ऐसा तो नहीं था कि लोग बीमार नहीं पड़ते थे, जाते नहीं थे, डिसफंक्शनल हो चुका था। हम लोगों ने 24/7 प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ये इंतजाम किया कि डॉक्टर्स हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, और हमने एक नई स्कीम शुरू की कि फ्री मेडिसिन वहां दिया जाएगा ट्रीटमेंट में, जो जरूरी दवाएं, और जेनरिक मेडिसिन देना शुरू किया। तो उसका नतीजा है कि एक साल के अंदर वो फिगर लगभग 2,500 से 3,000 हो गया ऑन एन एवरेज पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और आज तो वो 8,000 9,000 है, कहीं कहीं तो हम अभी भी उस फिगर को मॉनिटर करते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरफ लोग आने लगे। तो हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिया है। पहले पता नहीं चलता था कि गांव का स्कूल किधर है। आप कम से कम अब हमारे गांव में जाइएगा तो सबसे पहले आपकी नजर पड़ जाएगी और वो डिस्टिंक्ट है कि ये स्कूल बिल्डिंग है। तो ये चीजें शुरू हुई है, लोगों का ध्यान गया, बच्चे गए। फिर हमने देखा कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां कम जा रही हैं स्कूलों में। और उसका कारण क्या था? उसका कारण गरीबी थी। इवन अपर प्राइमरी स्कूल में, हम लोग उसको मिडिल स्कूल अपने यहां बोलते हैं, यानी क्लास 6 टू क्लास 8, लड़कियां कम जाती थी। और गरीबी के कारण मां बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी लड़कियों के लिए ठीक ढंग का कपड़ा का इंतजाम कर सके, क्योंकि क्लास 6 में पहुंचते पहुंचते लड़कियों के लिए ठीक ठाक सम्मानजनक रूप से रहने के लिए उसके लिए कपड़ों की जरूरत थी, वो नहीं था। इसलिए हमने 2007 में शुरू किया लड़कियों के लिए पोशाक योजना, बालिका पोशाक योजना। और उसका इतना इंपैक्ट पड़ा, लड़कियों का अटेंडेंस बढ़ गया। फिर हमने देखा कि सिर्फ ये मिडिल स्कूल तक पढ़ेंगी तो कोई काम चलेगा नहीं, सेकेंडरी पढ़ना चाहिए, हायर सेकेंडरी पढ़ना चाहिए। तो क्लास 9 में जाने वाली हर लड़की के लिए हमने साइकिल योजना की शुरुआत की। मुझे आज भी याद है, जब इस योजना की हमने शुरुआत की तो उस समय हमने इसका स्टैटिस्टिक्स लिया तो पता चला कि 1,70,000 लड़कियां क्लास 9 में थी मात्र। और ये साइकिल स्कीम, पैसा दिया हमने, हमारे पास प्रस्ताव आया कि ठीक है, इसका टेंडर करके हम साइकिल खरीद कर देंगे, उसमें बिहार गवर्नमेंट लिखा हुआ रहेगा, एक लोगो होगा। हमने कहा कि नहीं, ये अगर हम साइकिल खरीदेंगे तो पता नहीं सब स्टैंडर्ड साइकिल सप्लाई हो जाए, और हम जब लोगों के बीच में जाएंगे तो साइकिल तब तक टूट जाएंगे। सबसे पहले स्पोक टूटना शुरू होगा और बच्चियां मेरे सामने आएगी कि मेरा साइकिल तो टूट गया, साइकिल घोटाला हो गया। हमने कहा कि नहीं, ये कैश ट्रांसफर करना। तो कहा कितना देना? हमने कहा टेंडर में लोएस्ट रेट क्या आया? तो मुझको बताया गया 1,840 रुपए। हमने कहा 2,000 रुपया दीजिए, कुछ सजावट भी कर लेगी लड़कियां। और वहां शुरू हुआ, अब तो 2,500 दिया जा रहा। और 5 साल के अंदर लड़कियों की संख्या क्लास 9 में मेरे बिहार में संख्या बढ़कर हो गई है 6.5 लाख। है कोई ऐसी स्कीम लड़कियों की? और अब लड़कियों को साइकिल दिया तो लड़के मुझको सब जगह कहने लगे कि अंकल हम लोगों का क्या होगा? तो हमने कहा अब आप लोगों को भी मिलेगा। तो अब लड़कों को भी देते हैं। 14 लाख साइकिल क्लास 9 के लड़के लड़कियों को अब दिया जा रहा। दृश्य बदल गया ग्रामीण अंचल का। पटना में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, अब गांव गांव से लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही है। वो सुबह और शाम का दृश्य देखिए तो आप यकीन करेंगे। साइकिल सिर्फ साइकिल नहीं है, सिर्फ स्कूल जाने का वो एक यातायात का साधन नहीं है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। लड़कियों के अरमान के पंख लग गए।
उसको भी लगा कि हम बहुत आगे जा सकते, आत्मविश्वास आया और उसकी कार्यक्रम पूरे तौर पर सफल हुआ, कैश ट्रांसफर भी, और ज्यादातर लोगों ने खरीदा बच्चियों को। ये नहीं कि जो लोग कहते हैं बहुत लोग कि साहब पैसा तो देंगे लेकिन वो खा पी जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे। तो ऐसी चीजों से हम लोगों ने शुरुआत की, लोगों को इन्वॉल्व किया। अभी आप डायलॉग की बात कर रहे थे, तो पहले तो लोगों से डायलॉग कीजिए ना, उनको क्या चाहिए, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, वो कैसे आगे बढ़ने के बारे में सोचे थे। हमारे यहां तो लोगों की इच्छाएं मर चुकी थी। इच्छाओं को जगाना, आकांक्षाओं को जगाना बहुत बड़ी बात थी। आज हमसे लोग कहते हैं कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस आसमान छू रहे हैं, आप कैसे इसको टैकल करेंगे। हमने कहा आसमान छू रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या है भाई। पहले तो कोई आकांक्षा ही नहीं थी, और लोकतंत्र तो कभी जीवंत हो ही नहीं सकता है अगर लोगों के अंदर आकांक्षाएं न हो। आज आकांक्षाएं हैं तो लोकतंत्र और मजबूत होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगा। तो पहले किसी के मन में इच्छा ही नहीं थी, अब इच्छा तो आई। ये कोई साधारण बात नहीं है। आज हर आदमी सोचता है, सड़कें बनने लगी कि लोगों को लगता है हमारा बन जाए तुरंत। अब सब चीज होने लगा तो बिजली पर लोग कहने लगे बिजली पहुंचा दीजिए, तो एक अलग विषय है। लेकिन हमारे यहां तो लोगों के मन में कोई ख्वाहिश नहीं बची थी। अब फिर से ख्वाहिशें पैदा हुई, उम्मीदें जगी और एक्सपेक्टेशंस हाई होंगे, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। और हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन बढ़ाया है, और ये बढ़ाना जरूरी था। मन में अगर उम्मीद होती है, मन में अगर उत्साह होता है तो बड़ा से बड़ा काम आसान होता है। अगर उम्मीद न हो, उत्साह न हो, तो आदमी का मन मुर्दा हो जाता है और उससे कोई काम नहीं किया जा सकता। ये भी अगर आप जोड़ना चाहते हैं, अगर कोई मॉडल का नाम देना चाहते हैं हम लोगों के काम को, तो यह भी उसका एक अनिवार्य अंग है, उसका हिस्सा है। ये हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, और जब सड़कों पर काम शुरू किया तो हमने पहले दिन से लक्ष्य तय कर दिया कि भाई बिहार के सबसे दूर दराज के इलाके से राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटा से कम समय लगे। ये हमने लक्ष्य निर्धारित किया, और उसके हिसाब से सड़कों की योजना बनी, पुलों की योजना बनी। आज कितने हजार पुल बने हैं, कितने पुलों का निर्माण हुआ, सड़कें बन रही है। अब तो जो सड़कें बनाई उसको फिर मेंटेनेंस का दौर शुरू हो गया। हमने एक बहुत अच्छी मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई है, जो आप सड़क अगर बन रही है तो उसका मेंटेनेंस भी होगा। हमने एक नई पॉलिसी बनाई है तो सड़कों का, और अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि 250 की आबादी तक के गांव को ऑल वेदर रोड से जोड़ेंगे, पक्की सड़क से जोड़ेंगे, और ये काम हम लोग कर रहे हैं। पहले न के बराबर सड़कें बनती थी, अब खूब सड़कें बन रही है, जहां जाइए। हमने एक बार कहा कि भाई कितने रोड रोलर्स काम कर रहे हैं, देखिए कितनी सड़कें बन रही है, जहां जाइए वहां काम हो रहा। मुख्य सड़कों पर भी काम हो रहा है और अंदर की सड़कों पर भी काम हो रहा है। हम लोगों ने तो सड़कों पर इतना ध्यान दिया कि जो केंद्र सरकार की सड़कें थी, नेशनल हाईवेज, सिंघवी साहब तवज्जो देना चाहेंगे, उसको भी दुरुस्त करने के लिए हमने गरीब राज्य के खजाने से 1000 करोड़ रुपया लगाया। वो भी हमारा अटका हुआ है। अभी पिछले प्रोग्राम में आप लोग बार बार कह रहे थे बिहार को कुछ दिया, बिहार को कुछ मिला नहीं है, गलतफहमी है। कुछ मिला होता तो बात भी समझ में आती, कुछ मिला नहीं है और यो हवा बन गई। आप बोल रहे थे सेल करना नहीं जानते, ये तो सेल करने में इतना माहिर हैं कि बिना दिए कह देते हैं कि दे दिया। दिनेश भाई भी मान रहे हैं दे दिया। पता नहीं गुजराल साहब को तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन सबों को लगता है कुछ नहीं मिला है। बिहार को अगर स्पेशल असिस्टेंस मिल रहा है तो कानून के कारण मिल रहा है। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ही प्रोविजन है
जब झारखंड अलग हो रहा था तो उस एक्ट में प्रोविजन है कि बिहार को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सदारत में एक कमेटी काम करेगी और वो ये तय करेगी कि बिहार के नुकसान की भरपाई के लिए आगे क्या करना है। और वहीं से 2002 से सिलसिला शुरू हुआ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स के लिए। प्लानिंग कमीशन वो पैसा रिलीज करती है और वो हम लोगों को मिल रहा है। वही 11th प्लान में जारी रहा, वही 12th प्लान में जारी, लेकिन हल्ला हो गया कि हम लोगों को कुछ मिल गया, बिना मिले मिल गया। अरे देना ही है तो और कुछ मत दीजिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दीजिए, हमारी जो कमी है वो पूरा हो जाएगी। हम एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, कर लेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या करेंगे। माइंस मिनरल्स वाले इलाके तो गए झारखंड में, लेकिन हमें उसका अफसोस नहीं है। खान खदान भले झारखंड में, लेकिन विरासत हमारे पास है। बोधगया हमारे पास है, नालंदा हमारे पास है, वैशाली हमारे पास है, विक्रमशिला हमारे पास है। बहुत बड़ी विरासत है, हम सजा लेंगे अपने बिहार को। लेकिन इंडस्ट्री तो तब आएगा जब उसको कोई इंसेंटिव हो। तो इसलिए तो हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करते हैं। देना है तो वही दे दीजिए, इसमें कोई बहुत पैसा नहीं लगेगा, पॉलिसी का सपोर्ट जरूर हो जाएगा। तो पॉलिसी का सपोर्ट चाहिए, वो मिला नहीं। लोग समझ रहे हैं मिल गया, आप लोग भी जरा अपने मन से निकाल दीजिएगा, कुछ मिला नहीं। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम एहसानमंद लोग हैं। अगर कुछ दीजिएगा तो जितना दीजिएगा उससे ज्यादा कहेंगे कि हमको मिला। जब दे दीजिएगा तो हम जरूर अपना एहसान जतलाएंगे। अभी दिया नहीं, इसलिए नाहक हम एहसान लेने को तैयार नहीं। तो बिहार मॉडल में ये चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, सड़कों पर, और अब सड़कों के साथ बिजली पर ध्यान दे रहे हैं। बिजली की क्या स्थिति है बिहार की? पर यूनिट, जब हम लोगों की सरकार बनी थी उस समय था पर कैपिटा 72 यूनिट्स, आप कल्पना करेंगे। और देश का उस समय था लगभग 683। आज बढ़कर वो 122 यूनिट हुआ हमारे स्टेट में, और कंट्री एज ए होल का लगभग 800 यूनिट वो के करीब पहुंच गया। एनर्जी अवेलेबिलिटी, हम पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, उसके कोल लिंकेज के लिए तो 5 साल सिंघवी साहब हम दरवाजे पर दस्तक देते रहे, बिना दिए हल्ला। बड़ी मुश्किल से कोल लिंकेज, वो भी टेपरिंग कोल लिंकेज मिला है। उर्मा पोहाड़ी कोल 62% झारखंड को, 38% बिहार को। इंजन वो है, डिब्बा हम हैं। 38% वाले तो उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू करेंगे नहीं। तो इसलिए एनर्जी के मामले में अब हम लोगों ने किया, और हर चीज पर, चाहे वो जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, सब ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, नेटवर्क, इन सब चीजों पर एक साथ हम काम कर रहे हैं। और ये जो स्पेशल असिस्टेंस का पैसा है, ये स्पेशल असिस्टेंस का पैसा इस बार थोड़ा सा रोड सेक्टर में, और मेजर हिस्सा उसको हमने लगाया है सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में, कि अगर हम बिजली ले भी आए कहीं से, अपना जनरेशन भी शुरू हो जाए, तो उस बिजली को लोगों के घर तक पहुंचाएंगे कैसे अगर नेटवर्क नहीं होगा। आज उस नेटवर्क में सुधार हो रहा है, और मुश्किल से 700 मेगावाट बिहार में कंजम्पशन संभव था। आज की तारीख में 2000 मेगावाट अब मिल रहा है। साल के आखिर तक जाते जाते 2500 मेगावाट होगा, और 2015 तक 5000 मेगावाट से ज्यादा हम उपलब्ध कराएंगे। तो एनर्जी के सेक्टर में भी सुधार हो रहा, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तरफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और ग्रोथ प्रोसेस में सबको भागीदार बनाना, और खास करके जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको भागीदार बनाना। वीमेन एम्पावरमेंट,
महिलाओं को आधी भागीदारी 50% भागीदारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और अर्बन लोकल बॉडीज में प्रदान करने वाला पहला राज्य बिहार है। 2006 में मिला, शुरू किया हम लोगों ने, और दूसरा इलेक्शन भी हो चुका है। 50% तो रिजर्वेशन दिया, महिलाएं चुन कर आई हैं 50% से भी ज्यादा। तो वीमेन एम्पावरमेंट। फिर जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ उसमें 50% रिजर्वेशन हमने महिलाओं को दिया। और अभी हमने डिसाइड कर लिया है कि पुलिस फोर्स में दोनों जो एंट्री लेवल है, चाहे वो कांस्टेबलरी हो या सब इंस्पेक्टर का लेवल हो, दोनों में 35% रिजर्वेशन, हाईएस्ट इन द कंट्री, देने का फैसला किया। वुमेन एम्पावरमेंट, समाज के दूसरे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, महादलित, अति पिछड़े वर्ग के लोग, इन सबों को विकास के प्रोसेस से जोड़ा, उनका रिप्रेजेंटेशन भी हुआ और उनके विकास के लिए, ताकि वो जो अवसर उपलब्ध हैं उसके लायक वो बन सके। इसके लिए कई प्रोग्राम, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम हो, कोचिंग का प्रोग्राम हो। हमारे यूनिवर्सल स्कॉलरशिप है SC ST एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए। हमने माइनॉरिटीज के लिए स्कीम शुरू की कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी लड़का हो या लड़की, अगर वो मैट्रिक सेकेंडरी फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा तो उसको एक मुश्त 10,000 रुपए का हम प्रोत्साहन राशि देंगे। जब हमने योजना शुरू की उस समय 2600 स्टूडेंट्स माइनॉरिटी कम्युनिटी के फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहे थे। आज उनकी संख्या 23,000 से ज्यादा हो चुकी है। तो हमारी जो स्कीम्स लागू हुई है उसका फायदा साफ दिखा है, वो इंप्लीमेंट हुआ और हमने लोगों तक पहुंचा दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में हम तो बराबर डिजास्टर प्रोन है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो नेपाल से आती है, हमारे उत्तर बिहार में तबाही बचाती है साल दर साल, इसलिए हमने उस पर बहुत ध्यान दिया। एक एक चीज का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। कब क्या करना है, हमारे यहां जब भी कोई घटना घटती है विलंब नहीं होता है, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर लोगों को जो मिलना है वो मिल जाता है। तो कहां तो कोई सरकार नाम की चीज नहीं थी, वहां आज सरकारी तंत्र से यहां तक चीजों को पहुंचाया जा रहा है, चाहे वेलफेयर के हों या दूसरे जो भी काम वो किए जा रहे हैं। तो हमारा जो तरीका है वो इंक्लूसिव है, सबको लेकर चलने वाला है, सबको साथ लेकर चलने वाला। हमारे तरीके में किसी को छोड़ने वाली बात नहीं, सबको साथ लेना, और खास करके वो तबका जो हाशिए पर है उसको मुख्य धारा में लाना और उसके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाना, और प्रोग्राम ही नहीं बनाना, उसको लागू कर देना। ये हम लोगों ने किया, ये काम हम कर रहे हैं, आगे भी बहुत आगे करना है। अभी तो शुरुआत है, इस काम को आगे ले जाना है। और मैं समझता हूं कि जो पिछड़े इलाके हैं, आज अगर ग्रोथ रेट की बात हो रही है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता हूं कि जो GDP का ग्रोथ है वो सही मायने में ग्रोथ का प्रतिनिधित्व करता है। वह भी एक पैमाना हो सकता है, लेकिन GDP के ग्रोथ रेट को देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लेकिन अभी तो हम सब चीज में लोएस्ट हैं। हर चीज में प्रोग्रेस हो रहा है लेकिन हम लोएस्ट हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि जो पिछड़े स्टेट हैं उनको नेशनल एवरेज के बराबर पहुंचने में केंद्र को मदद करनी चाहिए। अब बिहार जैसे राज्य में काम हो रहा है, यही तो मौका है, मदद कीजिए। अगर आज आप मदद करेंगे तो वो कारगर होगा। सवाल केंद्र राज्य का नहीं है, जो केंद्र की सरकार होती है पूरे देश को देखना उनका कर्तव्य है। तो जिस राज्य की अलग अलग समस्याएं हैं, बंगाल की अलग समस्या होगी, उड़ीसा की अलग समस्या होगी, हमारी अलग समस्या है, अन्य राज्यों की अलग समस्याएं होंगी, तो सबके अनुरूप पॉलिसीज बननी चाहिए। और अब तो एक समय आ गया है कि जो अब हमने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के दौरान, जब हम अपनी बात की वकालत कर रहे थे, हमने कहा कि भाई
आज जो आपका ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट करता है, 8-9 से फिर नीचे चला आया, इसका कारण क्या है? बहुत सारे अर्थशास्त्री उसका दूसरा विश्लेषण करेंगे, हमारे एनके सिंह जी भी और विश्लेषण करेंगे, लेकिन मूल कारण मेरी समझ से है कि भारत का ग्रोथ रेट भारत के चंद विकसित राज्यों के ग्रोथ रेट पर निर्भर है। समावेशी विकास की बात जरूर की जा रही है, लेकिन समावेशन हुआ नहीं है, इंक्लूजन हुआ नहीं है। बात तो दो प्लान से कर रहे हैं। पिछली बार समावेशी कहा, इस बार तीव्र समावेशी कहा, लेकिन वो तीव्रता दिख नहीं रही है। अभी भी आप डिपेंडेंट हैं। अब बिहार का पॉपुलेशन कितना है? 8.2% कंट्री के पॉपुलेशन का, लेकिन हमारा जो कंट्री का नेशनल जीडीपी है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 2.9%। हम तो 10% कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कम से कम आबादी के अनुपात में तो जरूर करना चाहते हैं। और जिस दिन हर राज्य अपनी आबादी के अनुपात में कंट्रीब्यूट कर देगा, जो राज्य आज पिछड़े हैं, तो आपका ग्रोथ रेट कितना आगे जाएगा, इसकी कल्पना है। यह बात हमने कही है कि इंक्लूजन का क्या मतलब है, और इसी के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो गैप्स हैं उसको भरे। हमारे भी इंडस्ट्री होनी चाहिए। इंडस्ट्री आएगी कहां से? स्पेशल स्टेटस दीजिएगा, इंसेंटिव मिलेगा, इंडस्ट्री आएगी। दूसरा, केंद्र सरकार की एक पॉलिसी होती है जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे थे, हम गौर से सुन रहे थे। बुनियादी बात क्या है? केंद्र सरकार स्कीम बनाती है और कहती है राज्यों को कि लो, टेक इट और लीव इट। अगर लेना है तो तुमको 25% लगाना होगा, 50% लगाना होगा, 35% लगाना होगा। अब कोई राज्य सोचेगा कि भाई स्कीम को हम छोड़े कैसे, तो उसको अपने रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा निकाल देना पड़ता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए। तो हमारे लिए एल्बो रूम कितना बचता है अपनी योजनाओं के लिए? हमारे पास कुछ पैसा था तो साइकिल स्कीम बनाया हमने। हमारे पास पैसा होगा तो इसी तरह का इनोवेशन और करेंगे, और ग्रोथ ज्यादा होगा, विकास ज्यादा होगा। तो ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इनकी संख्या तो बिल्कुल नगण्य होनी चाहिए। इक्का दुक्का कार्यक्रम हो जाए, लेकिन भर बात में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या राज्यों में संवैधानिक सरकारें नहीं है क्या? राज्य के विकास की जिम्मेवारी राज्य पर नहीं छोड़ेंगे क्या? ये कौन सी मानसिकता है कि केंद्र में हम बैठ गए तो हम ही समझदार हैं और राज्य के लोग ना समझ हैं? आज तो राज्यों ने अपना काम करके बता दिया। दुनिया में मेल्ट डाउन हो रहा था और कुछ राज्य में उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था, तो इसका भी श्रेय देंगे या नहीं देंगे? राज्य अगर स्टेबल होंगे, राज्य अगर मजबूत बुनियाद पर खड़े होंगे, राज्य अपने हिसाब से अगर चलकर अपनी जरूरतों का आकलन करके अपने लिए योजनाएं बनाएंगे, तो योजना ऐसे ही बनेगी, पैसे से बनेगी ना। फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन होता है, क्या होता है? पहले केंद्र की जरूरत को निकाल लिया जाता है, तब राज्यों के बीच में फॉर्मूला बनाते हैं। भाई इतना ज्यादा केंद्र की क्या जरूरत है? राज्य का विकास होगा तो केंद्र का विकास नहीं हुआ क्या? भाई राज्यों को विकसित होने दीजिए। राज्य विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। कुछ राज्य अगर विकसित हो जाएंगे तो उससे देश विकसित नहीं होगा। देश के अंदर अंदर अशांति फैल रही है। ये सारी समस्याएं उसकी उपज है। इसलिए आपने जो कहा है समावेशी विकास, उस पर अमल कीजिए। राज्यों को हक दीजिए, राज्यों को काम कर रहे हैं उनको मौका दीजिए, और जो राज्य परफॉर्म कर रहे हैं उनको आज की तारीख में मौका दीजिए। अभी वो वक्त है, जब आप मौका दीजिएगा तो आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो प्रयास है, हमारा जो रास्ता है, और हम अपने और अपने जैसे पिछड़े राज्यों की हिमायत करते हैं कि उनके लिए होना चाहिए। अब बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं, जिसका हमने जिक्र किया। मिला नहीं, लेकिन बंगाल और उड़ीसा में तो लगता है कि सचमुच मिल गया। तो कुछ नहीं मिला, न बंगाल को मिला है, न उड़ीसा को मिला है, न बिहार को मिला है। वक्त है कि हम सब मिलकर एक साथ लगें और कहें कि हमें ये चाहिए, इनको ये चाहिए, हम एक दूसरे का समर्थन करें। लेकिन अभी एक पूरी राजनीति में अविश्वास का माहौल है।
चारों तरफ अविश्वास का माहौल है। तो इस अविश्वास के माहौल को खत्म करना होगा और इसके लिए बेहतर डायलॉग करना पड़ेगा, असली डायलॉग करना पड़ेगा, लोगों के साथ डायलॉग करना पड़ेगा, केंद्र को राज्यों के साथ डायलॉग करना पड़ेगा, खास करके पिछड़े राज्यों के साथ डायलॉग करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ का ही तरीका चल सकता है। भाई सपना देखने में तो कोई मनाही नहीं है, लोग तो दिन में भी सपने देखते हैं, लेकिन दिल्ली पर शासन, दिल्ली के माध्यम से देश पर शासन चलाने के लिए एक तो टेम्परामेंट डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ब्रॉड माइंडसेट होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, जो पिछड़े इलाके हैं उनके विकास के लिए होना चाहिए। और एक बात माफ करिएगा कि अगर पिछड़े इलाकों का विकास नहीं हुआ तो बहुत बड़ा खतरा विकसित इलाकों पर आएगा। लोग समझ नहीं रहे इस बात को। इसलिए इस बात को समझना होगा, देश को एकजुट रखना है, देश को मजबूत बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो फिर यही रास्ता है, सबको साथ लेकर चलने का रास्ता ही कारगर होगा। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के डायलॉग के जरिए, डिबेट के जरिए अगर इस दिशा में आप कोई माहौल बना सके तो मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन मैं नहीं जानता हूं, राजनीति में तो लोग खाली बोलते हैं, सुनते तो कम हैं। हर आदमी समझता है कि मेरी ही बात सही है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं समझते हैं। और हम लोगों ने लोगों से संवाद स्थापित किया है, लोगों का सुनकर हम कोई नीति बनाते हैं, समझकर कोई नीति बनाते हैं। और यही रास्ता है हमारा, इसी रास्ते पर चल रहे हैं, इसी रास्ते पर चलेंगे। इसका अंजाम चाहे जो हो, अंजाम की चिंता हमको नहीं है। मैं अपने साथियों को बराबर कहता हूं कि इस जिंदगी का तो ठिकाना ही नहीं। तो कुर्सी, सरकार, ये सब तो आने जाने वाली चीज है, उसके लिए बहुत नहीं सोचना चाहिए और बहुत ज्यादा आसक्ति मन में नहीं रखना चाहिए, लेकिन अपने सिद्धांत पर अडिग रहना चाहिए। और सिद्धांत वो जो लोगों को एकजुट करे और देश को आगे बढ़ाए। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपने मौका दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि बिहार का मॉडल एक इज मोर एफर्ट और आकांक्षाओं का मॉडल है, बट ये तो आप मानेंगे कि आज बिहार का मॉडल एक इंटरनेशनल ब्रांड भी बन गया। बहुत बड़ी डिबेट हो रही है, नोबेल लॉरिएट्स के बीच में डिबेट हो रही है कि क्या बिहार का मॉडल अच्छा है या गुजरात का मॉडल अच्छा है। तो एक कॉन्ट्रास्ट तो बन गया है, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन कॉन्ट्रास्ट तो बन गया। तो हमने थोड़े आंकड़े जो थे, हमने कहा हम देखें कि ये जो डिबेट इतनी चल रही है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की, इसमें आंकड़ों का तथ्य कहां है। तो हमने कुछ आंकड़े इकट्ठे करें। उसको बताने से पहले मैं एक चीज पता लगाना चाहता हूं कि बहुत कॉन्ट्रास्ट होता है मॉडल में। हमने ये तो सुना है कि आपको गुजरात के मॉडल में क्या अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ तो अच्छा लगता होगा। नहीं, हमने किसी मॉडल की बात ही नहीं की। नहीं, डिबेट में आता है। हम तो हर एक, देखिए सबसे बड़ी बात है डिबेट को आप कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, ये तो आप विद्वानों पर निर्भर करता है। हम तो एक साधारण एक्टिविस्ट हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, लोगों के बीच से निकलकर आए। हम लोगों को लगता है कि बिहार और बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों को विकसित और वहां के लोगों को संपन्न बनाने का रास्ता क्या हो सकता है, वो रास्ता हम लोगों ने चुना है। इसको मॉडल तो आप कह रहे हैं ठीक, हम तो ये जरूरत में नहीं कहते हैं मॉडल की। सबका अपना अपना तरीका है। मैंने प्रारंभ से कहा कि देश के हर इलाके की अपनी अपनी समस्याएं होंगी
उन समस्याओं के हिसाब से हमें नीतियां बनानी चाहिए, प्रोग्राम बनाना चाहिए और सेंटर का काम कोऑर्डिनेट करने का होगा और कोई गैप है तो उसको भरने का काम होना चाहिए। तो और एक बार हमने इसलिए बात बार बार कही है कि नेशनल एवरेज, राइट, आप एक नेशनल मीन ले लीजिए, आप जो भी पैरामीटर तय करें, पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड पैरामीटर ले लीजिए, लिटरेसी ले लीजिए, इम्यूनाइजेशन ले लीजिए, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ले लीजिए, ड्रॉप आउट्स ले लीजिए, कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स आप लेना चाहते हैं। हम लोगों ने जो काम शुरू किया है, अब हमने एक चीज देखा कि भाई एडुकेशन सबसे बड़ी चीज। हमने आबादी की बात की, आबादी के घनत्व की। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन काउंसिल है चीफ मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में, हम उसमें बात कर रहे थे और फिर हमने मिशन ह्यूमन डेवलपमेंट बनाया जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को तय करके उसको मॉनिटर करते हैं। तो हमने देखा कि हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो 3.7, 3.9 था, पिछले कुछ वर्षों में घटकर वो 3.7 हुआ। लेकिन हमने एक बात देखी, उसने हमको रोशनी दी। और हमने देखा कि अगर लड़की मैट्रिक पास है तो देश के किसी हिस्से में और हमारे बिहार में भी तो फर्टिलिटी रेट घटकर 2 हो जाता है। हमारे बिहार में भी मैट्रिक पास लड़कियों का फर्टिलिटी रेट 2 है। अगर +2 किए हुई है, इंटर किए हुई है, तो देश में 1.7 है, हमारे यहां 1.6 है। हमने कहा तो सब बीमारी का इलाज इसी में है कि हर लड़की को आप पढ़ा दो। तो इसलिए हमने तय किया कि हर एक विलेज पंचायत में हम +2 स्टैंडर्ड का हाई स्कूल खोलेंगे, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे। और हमने काम शुरू कर दिया, इसी साल 1000 और खोलेंगे। हमारे यहां 4500 पहले से 4000 के करीब और खोलना पड़ेगा थोड़ा। तो भाई हम सिर्फ आपको आ जा रहे हैं, कंक्लूड करें, आपको लग रहा होगा कि हम कहां जा रहे हैं। बहुत जरूरी मैंने सिर्फ ये कहा कि हम सीखते हैं तो सिर्फ अपनी चुनौतियों से, सीखते हैं तो अपने लोगों से, सीखते हैं अपनी समस्याओं से। हम बाएं दाएं नहीं देखते कौन मॉडल कहां है, कौन मॉडल यहां है। भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो अब कहां मॉडल देखें। तो थोड़ा बाएं दाएं हम देख लेते हैं। अब देखिए ना, एक मॉडल होगा कि विकसित इलाके को विकसित कर दीजिए। नहीं, मैं मान रहा हूं, देखिए तो थोड़ा बाएं दाएं हम देखें। आप वैसे इलाकों की बात करेंगे जो माइथोलॉजी में जाइए तो भगवान कृष्ण भी कहां गए थे? नहीं, मथुरा से कहां गए थे? और द्वारिका में उन्होंने क्या किया था? पोर्ट सिटी स्टैब्लिश किया था, द्वारकाधीश कहलाए। तो जो इलाका माइथोलॉजी में ही इतना विकसित है, इंपॉर्टेंट है, तो आप हमसे बात कर रहे हैं कब पीछे था? तो भाई कोस्टल एरिया है, हमारे डॉक्टर मेघनाथ देसाई जी बैठे हुए, कोस्टल एरिया है, आदमी जमीन की तुलना में वो अनुपात भी ठीक है, तो शुरू से विकास होगा। कोस्टल एरिया का तो विकास होता है, सब चीजें वहां आती है। अब शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री कहां आती है? भाई कुछ कचड़े भी पैदा होते हैं, इस विकास से कुछ कचड़े भी पैदा होते हैं जो बाद में कई प्रकार के हैजार्ड पैदा करते हैं। वो तो कभी बाद में भविष्य में पता चलेगा। लेकिन कचड़ा भी डंप करने की जगह हमारे यहां तो नहीं है। हमारे यहां तो इंच भरा हुआ है लोगों से। एक पॉपुलर सा परसेप्शन बना हुआ है कि बिहार का मॉडल जो है इंक्लूसिव है और जो राज्य हैं जैसे गुजरात हो या तमिलनाडु वो इतने नहीं है क्योंकि वो बहुत विकसित हो गए। तो मैं थोड़े आंकड़े देना चाहता हूं सिर्फ उसमें, और इस आंकड़ों में कोई ऐसा सरप्राइज भी नहीं ज्यादा छुपा हुआ है। तो हमने ऐसा करा है कि हमने आपका कार्यकाल जो पिछले 8 साल है और गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल उनके 12 साल, तो हमने आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा। और हमने जो है एब्सोल्यूट लेवल भी नहीं देखा क्योंकि वो विकसित प्रदेश है आपकी, तो बात भी आपकी मान ली कि वो कोस्टल है, वो भी बात मान ली। तो हमने कहा सिर्फ आंकड़ों का हम करते हैं, ग्रोथ रेट देखते हैं क्योंकि ग्रोथ रेट से एम्फेसिस पता चलता है। तो जो आंकड़े सामने आए वो थोड़े सरप्राइजिंग हैं। कुछ क्षेत्र में तो आपके टाइम में ग्रोथ रेट स्टेट एक्सपेंडिचर का फोकस ज्यादा रहा है, जैसे कि एजुकेशन में आपका ज्यादा रहा है, सैनिटेशन में आपका ज्यादा रहा है, एग्रीकल्चर में आपका ज्यादा रहा है आपके पीरियड में और उनके पीरियड में। हेल्थ में उनका ज्यादा रहा है ग्रोथ रेट स्टेट एक्सपेंडिचर का। रूरल डेवलपमेंट में गुजरात का ज्यादा है, इरिगेशन, फ्लड और एनर्जी में भी गुजरात का ज्यादा है।
तो कहने का मतलब यह है, मैं आंकड़ों में इतना नहीं जा रहा हूं कि दोनों ही मॉडल काफी इंक्लूसिव इन आंकड़ों से दिखते हैं। तो इतना कॉन्ट्रास्ट है जो कि लोग, इतना डिबेट हो रहा है कि नोबेल लॉरिएट भी बोल रहे हैं कि ये वो है। आंकड़े तो ये बताते हैं कि दोनों ही इंक्लूसिव मॉडल है। नोबेल लॉरेट जो बोल रहे हैं वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, हमने कहां से शुरुआत की है, और हमने बार बार कहा है कि हमने कुछ अचीव नहीं किया है, हमने अभी शुरुआत की है और हमारी कोशिश है। देखिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमने उस समय भी कहा, अभी भी कहा, देश आगे बढ़ेगा, जो विकसित हैं उनके विकास पर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, उनको विकसित होने देना चाहिए। वो तो पूरे देश में अगर कुछ इलाके हमारे विकसित हैं तो अच्छी बात है, उनका विकास होना चाहिए, लेकिन जो अविकसित इलाके हैं उनका हम अगर विकास कर लेंगे तभी तो सही मायने में सुपर पावर बनेंगे। बिल्कुल। और तभी तो सही मायने में मन में इच्छा होती है कि भाई चाइना का ग्रोथ रेट है तो हम उससे आगे निकल जाएं, तो कैसे निकलिएगा। तो इंक्लूसिवनेस, इंक्लूजन हर एक चीज में बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है आप किसके ग्रोथ की बात करते हैं। भाई किसी इलाके में के ग्रोथ से तो नहीं होता है, लोगों का ग्रोथ। यहां सिर्फ कुर्सियां हों और टेबल हों और लोग न हों तो ये प्रोग्राम कैसा लगेगा। कुर्सी टेबल की शोभा तभी है जब उस पर बैठने वाले लोग हैं। नहीं, तो विकास की शोभा तभी है जब उसका लाभ हर इंसान को मिलता है। वरना ग्रोथ का एक आप आइलैंड बना लीजिए या एक बहुत बड़ा टावर बना लीजिए, लेकिन उसमें पर ये आंकड़े नहीं बताते कि आइलैंड। हम आंकड़ों की बात नहीं कर रहे। एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूं, एक और सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बता दीजिए कि पर कैपिटा इनकम में जब से आपने चार्ज लिया, बिहार की पर कैपिटा इनकम 3.5 गुना बढ़ गई, 3.5 गुना। लेकिन अभी भी लोएस्ट है, अभी भी लोएस्ट है, लेकिन तभी तो मैं ग्रोथ रेट देख रहा हूं। और गुजरात में अगर हम नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देखें, वो 3.5 गुना हुई है। तो जहां पर भी आप देखिएगा बराबरी का है, इंक्लूजन बराबरी का है, आंकड़े बता रहे हैं। बाकी अलग अगर कुछ और आपका उसमें अंडरस्टैंडिंग है तो वो बात अलग है, लेकिन स्टेटिस्टिक्स बताती हैं कि दोनों मॉडल और पूरे इंडिया का मॉडल इंक्लूसिव है। इस देश में सारी इकोनॉमिक ग्रोथ ही इंक्लूसिव हो रही है। नहीं, इससे हम थोड़ा डिफर करते हैं। इंडिया का ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं हो रहा है। अगर ग्रोथ इंक्लूसिव होता तो आज हम ग्रोथ रेट में फिर से इस तरह से फ्लक्चुएट नहीं करते। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का यही कहना है ना, वो तो ग्रोथ के खिलाफ नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आप ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाओ, इसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए, इंसान को भी सामने रखो कि उसका ग्रोथ हो। ये कोई गुनाह तो किया नहीं। कुछ लोग कहते हैं ग्रोथ होगा तो सब चीज ठीक हो जाएगी, तो भाई ग्रोथ होगा तो एक गरीब नहीं रहना चाहिए, एक गरीब नहीं रहना चाहिए। अगर ग्रोथ खूब हो रहा है और गरीब भी हैं तो वो ग्रोथ का मॉडल सही नहीं है। हम उनके गरीबी की बात नहीं कर रहे जो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए तो इस सोसाइटी का दायित्व है, और सोसाइटी के बिहाफ में सरकार का भी दायित्व है कि वैसे लोग जो लाचार लोग हैं उनका हम ख्याल रखें। ये तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उनकी बात कर सकते हैं कि जो कुछ कर सकते हैं, उनमें कुछ करने की शक्ति है, ताकत है, शारीरिक रूप से सक्षम है, मानसिक रूप से ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ उस मायने में नहीं है। देखिए, हम इंक्लूजन की बात तो कर रहे हैं अपने नेशनल लेवल पर एक जमाने से, एक अरसे से, लेकिन जो हमने कहा जब तक अलग अलग राज्यों की जरूरत का आकलन करके उनको अगर स्वायत्तता नहीं मिलेगी, और इसके लिए भाई आर्थिक स्वायत्तता भी जरूरी है। अब ये ठीक है कि अब लोगों को प्रेसिडेंट रूल लगाना कठिन हो गया, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से, वरना पहले तो बात बात में लोग 356 की बात कर देते थे, डिसमिस कर देते थे। अब वो बात खत्म तो नहीं हो सकती। अब वो बात खत्म हो गई। अब तो एक म्यूनिसिपैलिटी को भी आप नहीं बर्खास्त कर सकते। तो ये हुआ है पॉलिटिकली, जो एक पॉलिटिकल फेडरल सिस्टम है उसमें कुछ मजबूती आई है, उसमें तो काफी आ गई है, लेकिन काफी नहीं, लेकिन फिस्कल फेडरलिज्म भी सबसे बड़ी चीज है। बहुत वीकनेस है। देखिए, सारा पैसा आप अपने पास रखिएगा और आप कहिएगा
कि भाई तुम विकसित हो और फिर एक ही तरह का पॉलिसी बना लीजिएगा। हर आदमी के पैर में एक ही साइज का जूता नहीं फिट हो सकता। अब इसकी जरूरत इस बात की है कि हर के मुताबिक, हर के लायक। इसलिए मैं यहां विनम्रता पूर्वक डिफर करता हूं कि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है। भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ है और इंक्लूसिव ग्रोथ ही समस्या का हल है। अब मैं एक और मुद्दे पे आना चाहता हूं। ये तो आपने जवाब अच्छा, अब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम एक एग्जाम्पल देंगे, फिर हम देंगे। नहीं, बिल्कुल आम लोगों से जुड़ा हुआ। मैं दूसरे मुद्दे पे जा रहा हूं। आप दूसरे मुद्दे पर जाइए। एक बात सुन लीजिए, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं जी। हमने पहले शुरू किया था ये पोशाक योजना। इसको किया था कि बैंक अकाउंट से करेंगे, या साइकिल के लिए पैसा हम बैंक अकाउंट से देंगे। लेकिन बैंक अकाउंट खुलने में भारी झंझट हुआ, नहीं खुला, वो स्कीम नॉन स्टार्टर हो जाती। तो हमने दिन फिक्स करके किसी न किसी बुजुर्ग या कोई जनप्रतिनिधि या उस इलाके के नोन व्यक्ति की मौजूदगी में एक दिन कैश बंटवाना शुरू किया। तभी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है। बच्चों के बैंक ब्रांच नहीं खुलते, गरीब बैंक अकाउंट नहीं खुलते हैं, गरीब किसानों के नहीं खुलते हैं, मजदूरों के नहीं खुलते। इसलिए इंक्लूजन की बात नहीं। आप एग्जाम्पल्स पर जाएंगे ना, किस तरह का इंक्लूजन। नहीं, आपकी वो बिल्कुल बात एक साधारण सा एम्पावरमेंट है। अगर एक बैंक अकाउंट है, आदमी का एक्सेस बैंक तक है। और मैं नहीं कहता हूं कि दिल्ली से कोई दोष है, सब लोग, चाहे वित्त मंत्री जी हों, रिजर्व बैंक के गवर्नर हों, हम तो अपने यहां की बात आपको बताते। हमारे यहां तो एक बहुत ही हमने अपने अनुभव के आधार पर अब इसको आर्टिकुलेट किया है कि हमारे यहां सीडी रेशियो बहुत कम था। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर आए, वित्त मंत्री आए, सब आए और सब लोगों ने टास्क दिया करो, इंप्रूव किया। लेकिन परसेंटेज टर्म में तीन चार बार में देखा कि ये सीडी रेशियो और ड्रॉप कर गया। दिल्ली से या उनसे हम उनको दोष नहीं देते। फाइनेंस मिनिस्ट्री का आदेश है, रिजर्व बैंक का आदेश है, फिर भी बैंक्स नहीं खोल देते हैं। अब आज जो स्थिति है, तो हमने बात कही है गरीब आदमी से जुड़ी हुई एक साधारण सी बात है, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिए, नहीं बिल्कुल इंक्लूजन के लिए और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है और लोगों को सचमुच करना पड़ेगा। और यहां पर जो अभी डिबेट कुछ देर पहले हो रहा था, रीजनल पार्टीज वर्सेस सेंट्रल पार्टी, नेशनल पार्टी। अरे भाई, रीजनल पार्टी आप क्या कह रहे हैं? नेशनल आउटलुक है, प्रभाव एक राज्य में है या दो राज्य में। लेकिन आज ऐसी कोई पार्टी देश में है जिसका समान रूप से प्रभाव देश के हर प्रांत में? कोई ऐसी पार्टी का नाम ले लीजिए। नहीं तो वो तो आप तो अधिक से अधिक आप कह सकते हैं कि कुछ पार्टियां सिंगल स्टेट पार्टी हैं, टू स्टेट पार्टीज हैं, कुछ पार्टियां मल्टी स्टेट पार्टीज हैं। तो हम उनको तो नहीं कह रहे हैं कि उनका आउटलुक नेशनल नहीं है। तो जनता दल तो बहुत बड़ी पार्टी है, कई टुकड़ों में बट गई। उसी से बीजू जनता दल निकल गया, समाजवादी पार्टी निकल गया, चौटाला जी की पार्टी निकल गई, अजीत सिंह जी की पार्टी निकल गई, हम लोग निकल गए। सब अलग अलग मना रहे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे। क्या है, इसको क्या करेंगे? लेकिन आउटलुक तो नहीं बदला। तो एक किसी नेशनल पार्टी के वर्कर से कम हम लोग नेशनलिस्ट नहीं है। देश की चिंता उनसे नहीं है। बिहार की सेवा हम लोग क्यों करना चाहते हैं? इससे देश का भला होगा। बिहार पीछे रह जाएगा, उड़ीसा पीछे रह जाएगा, बंगाल पिछड़ जाएगा और आप समझ लेते हैं कि देश आगे बढ़ गया। ये नहीं संभव है। इसलिए विनम्रता पूर्वक अभी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ है, बहुत कुछ करना बाकी है, करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं एक और मुद्दे पे आना चाहता हूं और अंत में बता दूं, मैं कोई विकसित राज्यों के खिलाफ नहीं हूं। विकसित राज्य और विकास करें, मुझे खुशी होगी। लेकिन हम तो अभी एक अविकसित राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी लिए हुए हैं। इसलिए हम हर फोरम पर और हर तरह से कोशिश करेंगे कि हमारा राज्य आगे बढ़े। अच्छा, कौन चाहता है कि अविकसित कहलाए? बिहार के मॉडल में अच्छा, बैकवर्ड कहलाना किसी को अच्छा लगता है? बिहार के मॉडल किसको अच्छा नहीं लगता है डेवलप्ड कहलाना? हम लोग बैकवर्ड कहलाते थे, अब डेवलपिंग कहलाने लगे। बैकवर्ड कहलाना खराब लगता था, इसलिए इंडिया इज ए डेवलपिंग नेशन। है बैकवर्ड लेकिन डेवलपिंग हो गए, तो डेवलपिंग सुनना अच्छा लगता है।
तो कितना दिन तक हम बैकवर्ड कहलाएंगे? हम भी आगे बढ़े। अच्छा, तो एक चीज बढ़ना चाहते हैं। एक चीज बताएं, जो आपने जो बिहार मॉडल के या बिहार के जो फिर मॉडल आप कर रहे हैं। मॉडल नहीं, जो आपकी स्ट्रैटेजी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बिहार में, उसमें 2-3 मुद्दे हैं जिसमें काफी वीकनेस है, जो अभी भी आपके 8 साल के बाद बहुत वीकनेस है, बहुत जैसे अर्बनाइजेशन सबसे लोएस्ट है बिहार में, मैन्युफैक्चरिंग तो बिहार में कम हो रहा है एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। तो ये तो बहुत भारी वीकनेसेस हैं। अगर फिर मैं बिहार मॉडल की बात, मैन्युफैक्चरिंग का जो वीकनेस है, इसी को दूर करने के लिए हम स्पेशल स्टेटस चाहते हैं। पर अगर वो नहीं मिलता है, नहीं देना चाहिए, नहीं अगर वो नहीं मिलता, इसका मतलब आप पॉलिसी सपोर्ट केंद्र नहीं देना चाहती है। नहीं, पर उड़ीसा जैसे राज्य भी हैं जो बैकवर्ड हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। उड़ीसा को एक फायदा है ना कि वहां माइंस एंड मिनरल्स हैं, और वहां दूसरा फायदा है कि वो कोस्टल स्टेट है, बैकवर्डनेस बहुत है, लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन ये एडवांटेज, हम तो लैंड लॉक्ड है। आप दुनिया भर में देखिए ना, बैकवर्ड स्टेट्स को और लैंडलॉक्ड स्टेट को एक डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट दिया जाता है। हम तो लैंडलॉक्ड भी है, हमारी कहानी तो और ज्यादा है। इसलिए अगर हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो कोई क्यों जाएंगे? अगर इंसेंटिव मिलेगा तो जाएंगे। वहां उनको ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, वहां का क्लाइमेट ठीक है, एटमॉस्फेयर ठीक है, कोई उनसे अंडरहैंड इधर उधर नहीं करेगा, कोई हैंकी पैंकी नहीं है, कोई तंग नहीं करेगा। अगर तंग करेगा तो उसको कानून के हिसाब से दुरुस्त भी करने के लिए हम लोग बैठे रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि सब होगा। आज वहां का एनवायरमेंट है, कंड्यूसिव है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। लेकिन अगर इंसेंटिव होगा तभी तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी स्टेट लेवल पे आप नहीं कर सकते? हम सिर्फ अपने स्टेट लेवल पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने जो बनाई है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, आप देख लीजिए, पर आपका मैक्सिमम इंसेंटिव है। लेकिन बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें डिक्लाइन हो रहा है, नीचे आ रहा है। यही तो है हमारा, यही तो हमारा आर्गुमेंट है। आप जो हमारा वीकनेस कह रहे हैं वही हमारा आर्गुमेंट है। यही आर्गुमेंट हमने एडवांस किया है कि भाई वहां गुंजाइश है, 10.5 करोड़ लोग हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट इमर्ज कर रहा है। इतना माइग्रेंट लेवल बढ़ेगा तो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो मैन्युफैक्चरिंग की जबरदस्त संभावना है, और मैन्युफैक्चरिंग की संभावना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगी, उनको इंसेंटिव चाहिए, स्टेट टैक्स और सब तरह का इंसेंटिव हमने, यहां तक कि कैपिटल सब्सिडी हमने दिया। लेकिन सेंट्रल टैक्सेस तो हमारे हाथ में नहीं। अगर उसमें कोई रियायत मिलती है, इसीलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंप्रूव करेगा। और दूसरी बात अर्बनाइजेशन की। जी देखिए, अर्बनाइजेशन तो हमारे यहां अभी 89% लोग हमारे यहां अभी गांव में रहते हैं, 11% अर्बन सेक्टर्स में, जो कि इंडिया का अर्बनाइजेशन लेवल 1900 में होता नहीं, ठीक है। तो 110 साल पीछे है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के मामले में भी हमने अब लॉ बनाया है, लोगों को लेकर, उनको भागीदार बनाकर, अगर वहां लैंड एक्विजिशन होगा तो लैंड लोग लेंगे, एक्वायर की बात हम नहीं कर रहे, सरकार नहीं करेगी। अगर कोई टाउन को डेवलप करना चाहता है, टाउनशिप को, वो अगर लेते हैं जमीन, तो फिर हमने लॉ बनाया उसको फैसिलिटेट करने के लिए। और दूसरी तरफ जिनकी जमीन जाएगी उनका परमानेंट स्टेक हम उसमें क्रिएट करवा रहे हैं, हमने लॉ बना दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी की परिस्थिति में बिहार में माहौल ठीक है, इसको लेकर लोग आएंगे। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कि भाई बहुत मैसिव अर्बनाइजेशन का सोच हम नहीं रखते। बिल्कुल अच्छा शहर बनना चाहिए। हमारे पटने की भी स्थिति बहुत खराब है, हमारे दूसरे शहरों की स्थिति ठीक नहीं। जो 11% अर्बनाइजेशन है उसमें कई तरह की दिक्कतें हैं, वो ठीक हो, और लोग जो शहर में रहें वो ठीक ढंग से रहें। लेकिन हम तो चाहेंगे कि गांव भी हमारा इतना अच्छा हो। आज भी गांव में एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से स्वच्छ हवा है, शहरों की कितनी हालत खराब हो गई। तो हम कोई मैसिव अर्बनाइजेशन के पक्षधर नहीं, हां, लेकिन आज जो हमारा लो लेवल का अर्बनाइजेशन वो भी नहीं चलेगा। से एक लिमिट हो सकता है 15%, 20% तक वहां जाए। एक और सवाल, और गांव में ही लोग, गांव में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, गांव में सारी सुविधाएं जाती है, सड़क जाता है,
पानी का इंतजाम होता है, स्कूल है, अस्पताल है, तो फिर बिला वजह नहीं जाएंगे। बेसिक तो रोजगार की तलाश में जाते, तो रोजगार की तलाश तो में फिर एग्रीकल्चर के पॉइंट पे आ रहा था। आपने एग्रीकल्चर में काफी इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन एक जो मॉडर्न सोच होती है, जैसे कि आपने जीएम क्रॉप्स को बैन करा है बिहार में, तो वो क्यों नहीं आप थोड़ा और मॉडर्न रवैये से सोचते हैं उसको? क्योंकि जीएम क्रॉप्स में प्रोडक्टिविटी बड़ी है, और अगर बिहार को विकास करना है तो आपका एग्रीकल्चर ही आपका सबसे बड़ा आपका अस्त्र है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने कह दिया एग्रीकल्चर सेक्टर का। ये एक जो नकली बात लोग जीएम क्रॉप को लेकर कह रहे हैं, वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो सीड मल्टीनेशनल के लिए बात कर रहे हैं। मैं पूरी गंभीरता से बोल रहा हूं, जहां जरूरत हो जेनेटिक मॉडिफिकेशन का, वहां जेनेटिक मॉडिफिकेशन होना चाहिए, अनावश्यक नहीं होना चाहिए। अब हमारे यहां ब्रिंजल में, बैगन में कोई रोग है ही नहीं, खूब अच्छी प्रोडक्टिविटी है, आप कह रहे हैं वहां जीएम लाओ। हमारे यहां मक्का की 3 फसल होती है, कोई रोग नहीं है मक्का में। अरे भाई जीएम तो तब आएगा ना जब बीमारी का इलाज कहीं और नहीं। बीमारी जीएम नहीं, प्रोडक्टिविटी भी तो है। नहीं, प्रोडक्टिविटी अभी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। देखिए इतनी जल्दी मत करिए। नहीं, आप चाइना में देख लीजिए, आज राइस जो है वो जीएम ग्रो करते हैं। देखिए ऐसा है कि हर चीज में किसी को मॉडल नहीं बना लेना चाहिए। हम हैं, चाइना है। नहीं, लेकिन अगर चाइना को अच्छा करता है तो फिर वो भी देखिए डेमोक्रेसी कॉपी करना चाहिए। डेमोक्रेसी है, हमारा एक आदमी का से है, एक आदमी का से है नागरिकों का, उनका हेल्थ कंसर्न, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इसको एड्रेस किए बगैर जब तक ट्रायल के द्वारा ये साबित न हो जाए कि इससे किसी प्रकार का हेल्थ का या इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं है, तब तक इसको नहीं ले जाना चाहिए। और बेजरूरत, और प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हमारे यहां किसान ने, आप चाइना का आपने उदाहरण दिया और राइस का ही दे दिया। हम आपको बता दें कि हमारे बिहार के एक गांव के 5 किसानों ने पैडी के प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर वो 5 किसान है। अब 5 किसान तो होगा, संभावना है ना। संभावना है। आप ये मत समझिए कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है प्रोडक्टिविटी का वो पूरे देश का है, वो भी कुछ खासी का होता है, वो भी कुछ खासी का होता है। तो अब मैं, क्योंकि थोड़ा ऑडियंस के पास भी जाना चाहिए सवाल के लिए, मैं आखिरी सवाल पॉलिटिकल करना चाहता हूं कि ये जो जितने भी सर्वे आ रहे हैं, हमने करा, बाकी लोगों ने भी करा, वो सब सर्वे 2 चीज बताते हैं। एक कि रीजनल पार्टीज जो हैं, सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल फॉर्मेशन बनेगी तो रीजनल पार्टीज की बनेगी। और जब सवाल पूछा जाता है कि हु इज द प्रिफर्ड चॉइस फॉर प्राइम मिनिस्टर, तो आपके परसेंटेज उसमें सबसे ज्यादा आता है। तो ये एक सीरियस मूवमेंट है, होना चाहिए, क्योंकि अब ये देश की आवाज है। ये सर्वे बता रहे हैं कि ये नीचे से कंट्री इज आस्किंग कि अब आप आए और लीडरशिप संभालें। नहीं, देखिए सर्वे तो होते रहेंगे और होते रहते, लेकिन उससे कोई आदमी को दिमाग में ये सब भ्रम नहीं पालना चाहिए। नहीं, भ्रम क्यों? हम बहुत ही एक छोटे राज्य में, गरीब राज्य में काम कर रहे हैं। हम इतना हाई ऑफिस को एस्पायर कर ले और बिला वजह कल से ऐसे ही आप लोगों के सर्वे में कुछ आ जाता है तो कुछ दिन तक परेशानी हमको महसूस होती है। हमारा नाम सर्वे में न दिया करे। अब वो सर्वे में ये तो आप लोग पूछते हैं तो सर्वे में बोल देते हैं लोग, हमारा नाम मत लीजिए। कुछ लोग कहां इस लायक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो आजकल कांग्रेस के साथ थोड़ी दोस्ती बड़ी है, तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है जैसी 1997 में आई थी और कांग्रेस को बाहर से सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये दोस्ती उस वक्त बहुत काम आएगी। नहीं, ये बात तो हाइपोथेटिकल है, लेकिन मेरा एक इशू बहुत स्पष्ट है और वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और पिछड़े राज्यों के प्रति नजरिया। वो क्या होता है, ये हमारे आगे की राजनीति को निर्धारित करेगा। तो एक सवाल, इससे कोई इंडिकेशन मत समझिएगा। नहीं, इसमें सारी बातें हैं। ये तो आप हमारे अपने ईस्टर्न स्टेट्स हैं, दूसरे पिछड़े राज्य हैं, उनकी गोलबंदी भी हो सकती है। अगर सेंटर में बैठे हुए लोग समय रहते अगर इन चीजों पर गौर करके, रिफ्लेक्ट करके कोई नतीजा निकालते हैं
और कोई पॉजिटिव स्टेप लेते हैं तो इसका फायदा उनको भी मिलेगा। फिर एक सवाल और, क्योंकि आपने कहा आपने कहा है कैटेगोरिकली कि अगर कोई स्पेशल स्टेटस बिहार को देगा तो आप उसका सपोर्ट करेंगे। हाइपोथेटिकली अगर एनडीए लेड बाय नरेंद्र मोदी के पास सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं और कहते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, तो क्या आप सपोर्ट देंगे? अभी तो स्पेशल स्टेटस देने की स्थिति में तो यूपीए है, अभी तो कोई दूसरा है नहीं। तो सवाल ओपन है। चुनाव के बाद आएगा तो नौबत आएगी तब ना, अभी तो कह दीजिएगा तो चांद भी लाके लोग दे देंगे। चांद भी ला करके लोग दे देंगे। तो सवाल ओपन है। हम लोग जानते हैं, इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। बिहार में 1,18,00,000 लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया है और बहुत बड़ी संख्या में, जितनी संख्या में लोग जुटे नहीं हैं बिहार में, पटना में जुटे थे और यहां रामलीला मैदान, तो खैर रामलीला मैदान कहना तो बेकार है, उसके बाहर लाखों की संख्या में लोग थे। तो ये जो कॉज है हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, वो बहुत ही सीरियस इशू है। ये कोई यूं ही कह देगा हिसाब हम दे देंगे, वो मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। चलिए, आज की तारीख में तो हमारा जो भी पिटीशन है, फरियाद है, वो आज की केंद्र सरकार के सामने, ये नहीं मिलेगा। हम बिहार की जनता से ताकत मांगेंगे कि इस काम को, इस बात को हासिल करने के लिए इतनी ताकत आप दीजिए। हम रहमो करम पर नहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों के ताकत के बदौलत इस चीज को। नीतीश जी, अब 3-4 सवाल हम ऑडियंस से ले लें। तो लेट्स जस्ट गो अक्रॉस टू द ओके, लेट्स गो टू द लेडी। कैन वी गेट द माइक? या वी कैन हियर यू एक्चुअली। जो आपने कहा कि विकास में सांकेतिक विकास और एक दुनिया के सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण बिहार बनकर उभरा है, और इस बात की हम लोग तारीफ करते हैं आपकी। और दूसरी जो बात है जिसमें कि आपने कहा इसी विकास के तहत आप एक स्पेशल स्टेटस मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की आधी आबादी इस समय लोकतंत्र में पूरी तरह से शामिल नहीं है। ये पूरी तरह से पूरे देश की जो जितने राजनीतिक दल हैं उनके बीच में एक खास तरह की आम सहमति बनी हुई है कि जो 33% आरक्षण, आपने तो 50% दिया विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बिहार में, लेकिन देश में जो 33% आरक्षण का विधेयक संसद में लटका हुआ है, रुका हुआ है, क्या आपकी पार्टी देश की आधी आबादी को न्याय दिलाने के लिए संसद को बाधित करेगी कि वो कम से कम इस विधेयक को, मुझे मालूम है कि चर्चा तमाम विकास पर भी हो रही है, लेकिन चूंकि गुड पॉलिटिक्स और गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, इस संदर्भ में आपने बिहार की महिलाओं को, आधी आबादी को आधा हिस्सेदारी दिलाई है, तो क्या आप देश की आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी दिलाने वाले बिल को, क्योंकि सिर्फ 2 सदन का अब इस समय रह चुका है, सिर्फ 2 अभी होगा और उसके बाद मुझे लगता है कि विंटर सेशन, तो क्या आपकी पार्टी अगुआ बन करके और आप अगुआ बन करके दिलाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, इस पर हम ये आपको याद दिला दें कि जब विमेन रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राज्यसभा में आया तो हमारी पार्टी ने राज्यसभा में एक मुश्त उसके पक्ष में वोट किया। अब तो जो चर्चा कर रहे थे नेशनल पार्टीज की थी, 2 नेशनल पार्टी मिल जाएंगी तो ऐसे ही पास हो जाएगा, मिलते का नहीं। इस बात पर मिल जाना चाहिए, लेकिन मिलते तो है नहीं। यस, कैन वी हैव क्वेश्चन देयर? यस यस। हाँ जी, मुख्यमंत्री महोदय, हमारी कंपनी बिजली के कारखाने लगाती है और रेलगाड़ी बनाती है। आपके प्रदेश में विकास होने के लिए 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, आप उनको बढ़ावा दे दीजिए, केंद्र सरकार दे दीजिए। सप्तकोशी बांध, मरोड़ा और माधेपुरा की 2 लोको फैक्ट्रीज, इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं। इतना विकास होगा कि पूछिए मत, करीब 20-25 हजार करोड़ रुपए की तो उत्पादन हो ही जाएगा। नहीं, हमें मालूम है, लेकिन उसमें राज्य सरकार की तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग तो चाहते हैं और हम लोग बराबर डिमांड कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि बजट से भी करना चाहिए था, इसको प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या संकट आया इसके ऊपर।
तो ये तो प्रोजेक्ट हम लोग चाहेंगे, जरूर आएंगे। हमारे इन्वेस्टमेंट की बात और रेलवे की बात, ये तो हम तो चाहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है उनका इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए बिहार में। भाई कई जगहों पर रिफाइनरी का एक्सपेंशन हुआ, बरौनी में एनडीए के समय में थोड़ा एक्सपेंशन हुआ, उसके अलावा बंद है। तो जो एग्जिस्टिंग भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हमारे यहां हैं उनका भी एक्सपेंशन नहीं हो रहा। तो रेलवे की ये यूनिट्स आ जाएं, इसके लिए तो हम लोग अपनी तरफ से लगातार प्रयत्नशील रहते। दिनेश त्रिवेदी जी भी थे, तो इनको भी मालूम है कि हम लोगों ने भी उसको पुश किया और हम चाहेंगे और हम लोग उसका समर्थन करते हैं। So we have one more question from this side. Yes, can we get the mic across there, please? थैंक यू। ये जो अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इसके कम से कम 3 मरने वाले बिहार रेजिमेंट के थे। चार बिहार रेजिमेंट के थे, 21st बिहार। ये एक किस्सा हुआ है। साल के शुरू में एक और किस्सा हुआ था जहां के सर काट दिया। एक चीन की तरफ से भी कुछ कार्रवाइयां ऐसी हो रही हैं जो नॉर्मल नहीं है। इसका जो लेटेस्ट हुआ है, पहला बयान जो सरकार ने दिया उसको बदली कर दिया गया। वही पाकिस्तान आर्मी जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है, जो ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे लेकिन भारत के कई हिस्सों में आके अटैक कर रहे हैं, इनके बारे में इनको एक्सोनरेट करना क्या आप समझते हैं ठीक है? थैंक यू। नहीं, कभी नहीं। एक्सोनरेट कैसे कर सकते हैं? ये हमारे नेशनल प्राइड के साथ, हमारे नेशनल यूनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे देश की सीमा में घुसकर कोई भी इस तरह की हरकत करता है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और पूरी ताकत के साथ उसका उत्तर देना चाहिए और डिटरेंट मेजर्स लेने चाहिए जहां हम उसके हिमायती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, पिछले साल मैं पाकिस्तान गया था पंजाब और सिंध प्रांत के मुख्यमंत्रियों के निमंत्रण पर। संजोग से चुनाव के बाद भी वही दोनों मुख्यमंत्री फिर बने और वहां की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हों या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हों या नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब के, या नवाज शरीफ साहब से भी मिलने का मौका मिला, सब लोगों से मिलने का मौका मिला। तो मुझको लगा कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ख्वाहिश है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। और मुझे याद है नवाज शरीफ साहब से घंटा भर की मुलाकात थी और जब उनसे चर्चा शुरू हुई तो हमने कहा कि अटल जी के समय में बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी थी, तो वो बिल्कुल नॉस्टैल्जिक हो गए और उन्होंने सारी बात कहना शुरू किया। तो भाई हमें थोड़ा पाकिस्तान की स्थिति को भी समझना चाहिए। ये जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं रिश्ते अच्छे चाहते हैं, लेकिन वहां पर और भी फैक्टर्स हैं और भी फोर्सेज हैं। वो अवसर निकालते हैं जिसमें रिश्ते बिगड़े। तो फिर इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और बाकी हमारे देश के अंदर कोई भी उत्पात मचाएगा, हम अपनी पूरी ताकत से उससे निपटेंगे। और मैं समझता हूं कि देश एकजुट है, इसमें कोई आगे कोई पीछे नहीं है, हर आदमी एक राय रखता है। लेकिन एक वाइडर क्वेश्चन के तौर पर हमने कहा कि भाई हमें यह भी सोचना चाहिए कि कैसे और शांति हो, लेकिन शांति इतना सरल नहीं है। शांति का जब भी कोई प्रोसेस शुरू होगा तो उसको बिगाड़ने की पूरी कोशिश होगी। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अटल जी के जमाने में नवाज शरीफ साहब के बीच में कारगिल हो गए, तो भाई कारगिल में तो पूरा देश एकजुट है, हर जगह पर हुआ है और हम लोग तो विक्टिम हैं। अभी हमारे 4 लोग बिहार के जवान शहीद हुए और जो भी मुमकिन होगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम उनके लिए करेंगे ताकि उनका परिवार बिल्कुल ठीक ढंग से बाकी जिंदगी जी सके। अभी तो हम लोगों ने वहां एक्स ग्रेसिया 10 लाख रुपया प्रति परिवार किया है, पूरा राज्य उनके साथ रहेगा। इसके अलावे भी उसके फैमिली को किसी तरह की कठिनाई होगी उनको सेटल करने के लिए मदद करेंगे। ये जज्बा हर जगह है, लोगों के मन में है।
और इसमें कोई देश में दो राय नहीं हो सकती है। We have last two questions. Yes, please. Yes. Can you get the mic across there? Just reaching. The mic's just reaching. नीतीश जी, आपको याद है 2004 के चुनाव में जब गुजरात के दंगों की फोटो सारे बिहार में लगी थी, उस लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अच्छा रिजल्ट दिखाया। हालांकि कुछ महीने बाद वो असेंबली का चुनाव आपसे हारे और फिर 6 महीने के बाद फिर से हारे। अब आपने नरेंद्र मोदी को भी एक मुद्दा बनाया है, बन गए हैं वो मुद्दा इस चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए, और मोदी जी खुद बिहार आएंगे कैंपेन करने के लिए। तो जो आपके लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल ओपोनेंट लालू जी भी मोदी को ही मुद्दा बनाएंगे, वो कहेंगे वो ज्यादा सेक्युलर है कि नीतीश जी ज्यादा सेक्युलर हैं। तो ये जो तमाशा होगा उसमें गवर्नेंस इशू रहेगा कि नहीं, कि बिहार में अब बस नरेंद्र मोदी ही, दोनों जो मेन फोर्सेस हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी ही इशू रहेंगे? देखिए, हम तो व्यक्ति को कभी डिस्कस नहीं करते और आप आश्वस्त रहिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कोई मुद्दा वहां नहीं। वहां मुद्दा गवर्नेंस रहेगा, वहां मुद्दा सोसाइटी में पीस, शांति, और ये कहने की बात नहीं, करने की बात है। अगर हमको लगा कि आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज करने की नौबत है तो हम लोगों ने इसे नकार दिया और कठिन रास्ता चुना। ये बिहार की जनता को दिखाई पड़ रहा है, और गवर्नेंस में एक दिन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन साथ साथ जो पॉलिटिकल इशूज हैं, आइडियोलॉजिकल इशूज हैं, उस पर भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब तक हम रहेंगे, निश्चिंत रहिए, गवर्नेंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और साथ साथ हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप सर्वे और आप लोगों का जो भी कोई दिखाता है, रिजल्ट आएगा उस दिन आपको संतोष मिलेगा। मैं आपको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। Yeah, final question from you. Yes. Can you get the mic across there, please? धन्यवाद। नीतीश जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप इतना सक्रिय कार्य कर रहे हैं और अभी भी अपने आप को एक एक्टिविस्ट कहते हैं, जबकि 8 साल से आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो बहुत ही अलग छवि मिलती है पॉलिटिशियंस की, और पॉलिटिशियन बैशिंग हमारे देश में होती रहती है, तो उसके लिए मुबारकबाद आपके लिए। मेरा प्रश्न आपकी जो आखिरी अभी आपने उत्तर दिया आइडियोलॉजी पे ही है। आप क्या सही मानों में समझते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर है, और अगर है तो वो क्या अंतर है? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जब क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर बात होती है तो एक होती है, जब विमेन रिजर्वेशन को ब्लॉक करना होता है तो एक होती है, क्योंकि अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो 3/4 तो यही लोग हैं, कोई भी बिल पास कर सकते हैं। अगर खेल पाल आना चाहिए तो इनकी रुकवाई होती है। हाँ, बहुत चीजें करते हैं। लोकपाल आना चाहिए तो ये रुकवाते हैं। 40 साल से ये कानून पास नहीं करते। तो आपने कहा हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब आप जो हैं वो तो एनडीए में थे, तो कांग्रेस तो अभी बिल्कुल सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है भ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान की, कभी कोई भी आंकड़ा ले लीजिए उसमें। तो आप तो एक ईमानदार छवि के आदमी हैं, आप अपने आप को भी कार्यकर्ता समझते हैं, तो क्या आप अपॉर्चुनिस्ट नहीं हो जाएंगे जब आप यूपीए के, अगर यूपीए आपको वो स्पेशल कैटेगरी दे देती है या कांग्रेस दे देती है, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? आइडियोलॉजी बेस्ड क्या है? We've got the question. Thanks. Yes. स्पेशल कैटेगरी एक नीड है और इसके साथ भी आइडियोलॉजी जुड़ी हुई है। इंक्लूसिव ग्रोथ की आइडियोलॉजी, वो एक स्ट्रेटेजी, कैसे देश आगे बढ़ेगा, इसलिए उसको हल्का करने की जरूरत नहीं। जहां 2 पार्टियों के बारे में आपने जिक्र किया, इन दोनों पार्टी के नेताओं को किसी दिन बैठाएं और आप ये सवाल करिए और आप जज करिए क्या फर्क है, नहीं फर्क है। हम लोग तो अलग हैं, हमारा अलायंस भी था, तो भी हम लोगों ने एक दिन के लिए बेसिक इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और जो पॉलिसी निर्धारित की उसी के हिसाब से सरकार चली। और केंद्र में भी जब हम लोग शामिल हुए थे तो बात तय हो गई थी कि जो 3 विवादित मसले हैं वो अलग रखे जाएंगे। आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की बात नहीं होगी, कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं होगी,
और अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत से होगा या कोर्ट के फैसले से होगा। ये 3 इशू को अलग रखा गया तो हम लोग शामिल हुए थे, हम सिर्फ याद करा देते। और रही बात बाकी चीजों में क्या है, वो तो उन दोनों पार्टियों के नेता बैठे तो ज्यादा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते। नितेश जी, एक आखिरी सवाल, फिर विल वाइंड अप। माइक प्लीज। नितिश जी, हिंदी का एक कहावत है कि गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज। तो आप को मोदी जी से परहेज है, भाजपा से परहेज नहीं है, अडवाणी जी से परहेज नहीं है। तो ये आपका जो विरोधाभास है कि एक तरफ आप एक आइडियोलॉजी को, सिर्फ भाजपा की आइडियोलॉजी 3 चीजों पे तो नहीं है, अयोध्या या 370 या कॉमन सिविल कोड। भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो एक नॉन सेकुलर आइडियोलॉजी है, जो बिल्कुल एक अलग लाइन पे चलती है, जो बुनियादी एक इख्तिलाफ रहा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस और भाजपा की इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है, फॉरेन पॉलिसी में भी कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सेकुलर पॉलिसी के सवाल पर है, और वो सिर्फ मोदी से नहीं आया है, वो भाजपा के अंदर गोलवालकर से और आरएसएस के बैकग्राउंड से आया है। तो ये जो आपका विरोधाभास है, ये क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि आपको जब सूट करता है तो आप उसे सेकुलर मान लेते हैं, जब आपको सूट करता है तो आप मोदी को बहाना बनाकर उससे अलग हो जाते हैं? ये एक आरोप है, ये प्रश्न नहीं, ये तो आरोप है। और इस देश में हर कोई आजाद है अपनी राय बनाने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, पूरी आपकी बात पूरी सुने तो मेरी बात भी तो सुनिए। मैंने कहा ये तो प्रश्न है ही नहीं, ये तो एक आरोप है और इसको सिरे से हम खारिज करते हैं। और हमारे आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कायम रहे और उसी के हिसाब से गवर्नमेंट चली। और बिहार के लोग जब तक बिहार के हिसाब से सोच रहे थे, काम चला। जब उन पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हावी हो गए तो चलना नामुमकिन था, उस चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। और आप तो बड़ी आसानी से निकल गए, हम तो आराम से चल रहे थे। हमारी तो सरकार बड़े आराम से चल रही थी, हम तो बड़ा इत्मीनान से, जिसको कहते हैं लीजरली वॉक कर रहे थे गवर्नेंस के ट्रैक पर। और अब तो टाइट रोप वॉक में हम आ गए, तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ता है? अगर इसमें कोई इशू नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, तो ऐसा कभी सुना है? कोई इत्मीनान की जगह छोड़ करके चला आएगा इस तरह से कठिन दौर में? तो सबसे बड़ी बुनियादी बात है उसके इंपैक्ट को देखिए, उसके इंपैक्ट को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने ज्यादा सवाल गवर्नेंस प्लस पॉलिटिक्स प्लस इश्यूज पे लिए और एकदम आराम से, लेजरली और हंस के लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। Thank you, ladies and gentlemen, for being a part of the Think India Dialogue initiative.